Hello students, I hope you all are fine and you are learning your chapters well. So we have completed the chapter number 3. Today we will see the chapter number 4 explanation and holiday homework as well. It is here evolution of transport. In earlier we read about the evolution of mankind. Here we will see the evolution of transport. As we know, first of all, man has invented the wheel. Afterwards it has taken the places of carts, bullock carts, tongas, and many animals were using that time. But by the time transportation has taken the changes and has taken a phase of evolution. We will see here the evolution of transportation, just like the evolution of humankind, has gone through many hits and trials as it evolved throughout the time. समय के साथ साथ बदलता गया. Throughout history, man has slowly and painstakingly evolved with the means of transportation to where it is to. यानी इंसान ने बहुत सारी परेशानियां सही और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, धीरे धीरे उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पर आज ये है. मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव इवॉल्व्ड एंड मैनी मोर हैव गॉन एक्सटिंक्ट. बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के जो साधन है वो जो है उत्पत्ति हुई, उनके बहुत सारे जो है विलुप्त हो गए. विद द एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड कल्चर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ डेवलप्ड एज वेल. धीरे धीरे इंसान की समझदारी, कल्चर और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे विकसित होता चला गया. Invention of wheel and beginning of the transport. In early times, there was no wheel and no vehicle. Early human had to walk long distances. यानी कोई vehicles, कोई जो है व्हील का आविष्कार नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था. पहले मानव को जो है पैरों पर ही चलना होता था. They had to carry the load and dead animals on their back. उन्हें जो है अपना बोझ या डेड एनिमल जो है अपने कंधे पर ही उठाना पड़ता था. They also used to like horses, donkeys, bullocks for carrying heavy loads, but they took a lot of time. With the passage of time, they developed raft and sledges to carry their heavy things. You can see here clearly raft and sledges. Raft is a thing which can float on water easily, and the sledges are run on the smooth surface. They can move easily on the smooth surface. Now we'll come here. Sometime later, the early human realized that the round logs of wood could move easily on the ground. The invention of wheel appeared in late Neolithic age around 3500 BC. That idea was converted in the invention of wheel. यानी मानव को ये समझ में आया कि जो राउंड लॉक्स हैं वो आराम से ज़मीन पर मूव कर सकते हैं, इसीलिए उसने नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक पीरियड में लकड़ी के गोल गोल राउंड्स काट लिए, लॉक्स काट लिए और उन्हें एक गाड़ी के रूप में, एक जो बैलगाड़ी के रूप में उसको बनाया. या सबसे पहले तो पॉटर्स व्हील बनाया गया था जिससे बर्तन बनाए गए. ओके, इट वॉज द मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट. इट इज़ बिलीव्ड दैट द फर्स्ट व्हील वॉज मेड बाय कटिंग लॉक्स इनटू राउंड. बताया मैंने आपको, राउंड वुड में काटा गया था. द इन्वेंशन ऑफ, नेक्स्ट पेज, the invention of wheel made up the land travel easier and faster. It also improved the life of early human being. It is said that the wheel was first used by potter. As I told you, first the wheel was used by the potters. Potters made the pots and utensils to keep their grains and all. The use of wheels for transportation was done later on. यानी पहिए का जो गाड़ियों में इस्तेमाल है वो, या बुग्गियों में इस्तेमाल है, या बैलगाड़ियों में इस्तेमाल है, वो बाद में किया गया. सबसे पहले उसे कुम्हार के चाक पर यूज़ किया गया. द फर्स्ट एविडेंस ऑफ व्हील्ड व्हीकल अपीयर्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 4th millennium BC in Mesopotamia and Central Europe. Undoubtedly, the invention of the wheel brought a lot of changes in human day to day life. यानी हमारी जो रोज़मर्रा की जीवन है इसमें कोई डाउट नहीं है, निसंदेह हम कह सकते हैं कि व्हील ने जो है, पहिए ने जो है हमारे जीवन को एक रफ्तार दी है और इससे जो है हम अपना समय भी बचा सकते हैं. नाउ डेज वी कैन सी व्हील इज़ यूज्ड एवरीवेयर. एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ट्रेन and car, buses, bikes, cycle, everywhere wheel are used.
After the wheel was invented, people started using carts to transport goods and chariots means rath and bullock carts to travel. Even boats with oars were invented to travel in the water bodies. Horses were also popular. Later on, the became the very common during the medieval period. Okay, students. Now I'll come to the transportation in the Middle Ages. Transportation in Middle Ages. Transportation in Middle Ages was not so much advanced. People mainly traveled on foot, horses, mules and carts. यानी अभी भी जो है मिडिल एज में इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन. लोग जो है पैरों के द्वारा हॉर्सेस, म्यूल्स या कार्ट्स के द्वारा यात्रा करते थे. हाउ एवर ट्रेवलिंग बाई वाटर वॉज अ लॉट ऑफ मोर एफिशिएंट सिंस देयर वर नॉट एनी रोड्स. उस समय जो है लोग पानी से यात्रा करना ज़्यादा उनके लिए कन्वीनियंट होता था, आरामदेह होता था क्योंकि उस समय जो है सड़कें नहीं थी प्रॉपर. पहियों को चलाने, एक बेकार सरफेस पे जो है पहियों को चलाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन लोग जो है पानी में यात्रा करना ज़्यादा कन्वीनियंट समझते थे. एक बड़े बड़े जहाज जो हैं पानी में चला करते थे, नावें चलती थी, बोट्स चलती थी विद ओर्स. मिडिल एज द बोट्स वर मेड अप ऑफ वुड एंड मोस्ट वर पावर्ड बाय द विंड. ज़्यादातर जो है हवा के सहारे चलती थी. अदर दैन दैट व्हीकल्स सच एज वेगॉन्स, जो वेगॉन्स वो बोलते हैं जो सामान उठाने के लिए काम आते हैं, ऐसी गाड़ियाँ वर यूज टू हॉल हैवी लोड्स अराउंड, भारी सामान को ले जाने के लिए. ए मेजर चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन हैपन इन दिस एज. इन 400 AD द मडी ट्रैक्स वर रिप्लेस बाय द रोड. मडी ट्रैक्स को जो है 400 AD में जो है रोड्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, उनकी जगह सड़कें आ गई. विद द राइजिंग पॉपुलरिटी ऑफ व्हील कार्ट्स स्मूथ रोड्स वर वेरी मच नीडेड. यानी पहियों वाली गाड़ियों को, बुग्गियों को चलाने के लिए जो है अच्छी सड़कों की ज़रूरत थी, स्मूथ सरफेस की ज़रूरत थी. एज व्हील कुड नॉट रोल ओवर द शेकी एंड स्टेबल ग्राउंड, क्योंकि पहिया जो था वो शेकी या अनस्टेबल, टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर, सरफेस पर नहीं चल सकता था. रिस्क इन ट्रांसपोर्टेशन, द राइज इन द ट्रांसपोर्टेशन इन मिडिल एज अलाउड फॉर द इंक्रीज इन ट्रेड एंड ट्रेवल थ्रू आउट द यूरोप. और इससे क्या हुआ, जैसे जैसे लोग ट्रांसपोर्टेशन यातायात करने लगे, लोगों का व्यापार बढ़ा और उनका यातायात के जो है यातायात भी उन्होंने ज़्यादा करना शुरू किया पूरे यूरोप में. नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे यहाँ पर. इवन इन ट्रांसपोर्टेशन एट सी फ्लोरिस्ड इन द मिडल एज. इसके समय जो समुद्री किनारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेड में आ गए, व्यापार होने लगा समुद्री किनारों पर. मैनी इन्वेंशन हेल्प रेंडर ट्रांसपोर्टेशन एट सी मोर ड्यूरेबल. और व्यापारियों ने या बहुत सारे जो आविष्कार करता थे उन्होंने भी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अपना योगदान दिया. ट्रांसपोर्टेशन बाय द बोथ लैंड एंड सी ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज इंटीग्रल, यानी बहुत एसेंशियल था. एंड बूमिंग इकोनॉमी, और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुआ. एंड मेजर इनोवेशंस एंड दैट रिजल्टेड इन द एरास आफ्टर द मिडिल एज. और मिडिल एज के बाद जो है बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उसको जो है एरा में बदल दिया, एक युग में बदल दिया. ओके स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन. In next video I will explain the rest of the chapter. Okay, now we will see the holiday homework. It is here. Holiday homework. Write all the exercises and question answers of chapter 4 in S.st copy as a homework. This homework you have to do in the S.st copy only. Okay, you fold a page and write down holiday homework, and then you can write there. Okay, and learn chapter 1 to 4, because when the school will get open, before 1 week you will be informed before the test. Okay, so be aware about this thing that when the school will get open, surely your exam will be there. Okay, so be prepared for your test. Okay students, thank you.